हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟੋਰਸ ਕੰਟਰੋਲ। ਸਟੋਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 35 ਤੋਂ 40% ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਦੈਟ right quality of material is available in the right quantity. Right quality of material यानी quality better होनी चाहिए है, in right quantity जिन्नी quantity चाहिए ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, at the right time जिस time ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, and right place with right amount of investment ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। Then in simple words, material control is a systematic control over the purchasing, storing and using of material so as to have minimum possible cost of material. Cost of material ਨੂੰ minimum ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ control ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? purchasing ਤੇ, purchasing ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, storing and using of material so as to, ਠੀਕ ਹੈ, purchasing, storing and using ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲਈ ਕੋਸਟ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੀ ਭਜਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ, एक क्वांटिटी और यूनिट कंट्रोल, दूजा रूपी और फाइनेंशियल कंट्रोल। जो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव है वो क्वांटिटी ते यूनिट ते कंट्रोल करता है, ठीक है, क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए है, ठीक है, घट तो घट मटीरियल यूज करके वधिया तो वधिया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश है, एफिशिएंसी, दूजा वेस्टेज घट तो घट होवे, ओदा इस चीज ते ध्यान हुंदा है। व्हेन प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव एंड स्टोर कीपर्स आर प्राइमरी इंटरेस्टेड इन क्वांटिटी control because their interest is to see that there should be no stock out of problem, no stock out problem, stock out ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। On the other hand, financial executive are interested that too much money should not be invested. Financial executive ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੰਗਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਸਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। Then aspects of material control, there are two aspects of material control like accounting and operational aspect. Accounting aspect ਆਪਾਂ material control ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। Store control ਅਸੀਂ store ledger ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। However, operational aspect is concerned with maintenance of material supply and to ensure availability of material. Operational aspect है material ਦੀ supply ਸਹੀ ਰਵੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਣੀ ਰਵੇ ਉਹਦੀ, ਤੇ material time to time available ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। then need for control, material control ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ availability of material। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਰ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। then no excessive investment in material, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਸਟੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਰਿਸਕ ਆਫ ਸਪਾਇਲੇਜ ਐਂਡ ਆਬਸੋਲਸੈਂਸ, ਸਪਾਇਲੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਬਸੋਲਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
एक्सपायरी ना हो जाए अभी, इस चीज़ का भी जिहड़ा है ਅਸੀਂ ध्यान रखांगे, जे ਅਸੀਂ कंट्रोल करांगे तो ये सब कुछ बेटर रहेगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल्स, मटीरियल की अवेलेबिलिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन देगी फिर साडे कोल कितना मटीरियल इस टाइम पे है, कदों किन्ने होर मटीरियल की लोड़ है, वो सारा सिस्टम अगर कंट्रोल रखा है तो सब कुछ सही तरीके हो जाएगा। दैन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मटीरियल, मटीरियल की मिस एप्रोप्रिएशन को ਅਸੀਂ रोक सकांगे अगर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ है कंट्रोल ਨੂੰ प्रॉपर सिस्टम ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। दैन राइट अमाउंट ऑफ पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर्स ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ पेमेंट कर सकांगे, ਜਿਵੇਂ कि अगर ਆਪਾਂ रीजनेबल प्राइस से खरीदांगे ऑब्वियस है ਜਿਹੜੀ है वो राइट अमाउंट ही सप्लायर्स ਨੂੰ जाएगी। नैक्सट है साढ़े को टेक्नीक्स ऑफ मटीरियल कंट्रोल, मटीरियल कंट्रोल दी डिफरेंट टेक्नीक्स है, ये 10-11 टेक्नीक्स है। तो जो थ्योरी च क्वेश्चन आएगा तो ये 8-9 टेक्नीक्स लिख दोगे सफिशिएंट होएगा। हाँ जी, सब तो पहले लेवल सेटिंग, फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम, एबीसी एनालिसिस, वेट एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, डबल बिन सिस्टम, इनपुट रेशियो सिस्टम, मटीरियल और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एफएनएसडी एनालिसिस, मटीरियल कॉस्ट रिपोर्ट्स, ये सारे जिहड़े टेक्नीक्स है असीं 1 बाय 1 स्टडी करांगे। इन्हां चों कुछ टेक्नीक्स साडीआं प्रैक्टिकल यूज आंदियां, बाकी सारियां जिहड़ियां है थ्योरैटिकल ही ने। खास तौर पर पहलियां दो जिहड़ियां है साडे प्रैक्टिकल दे विच यूज आनियां। पहलियां दो तो सब तो पहले लैवल सेटिंग, लैवल सेटिंग कहते हैं कि डिफरेंट लैवल सैट किए जान स्टोर के मटीरियल रखने दे, ताकि मटीरियल जो है सही तरीके मेनटेन किया जा सके और मटीरियल पर कंट्रोल रखा जा सके। ठीक है, ये डिफरेंट लैवल के बारे की कह रहा है, इन ऑर्डर टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ मटीरियल, डिफरेंट मटीरियल लैवल्स आर सेट इन ऑर्डर टू मेनटेन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटीरियल्स इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री के हर तरह के मटीरियल की अवेलेबिलिटी वास्ते डिफरेंट लैवल सैट किए जान, ये किया जा रहा है। then different level केड़े-केड़े ने, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। ये जो रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जिस लेवल ते आके असी अगला ऑर्डर प्लेस कर देने हैं। असी चाहते हैं कि हुण नवा मटीरियल साडे कोल आ जाए, नवे मटीरियल का ऑर्डर प्लेस कर देना, यानी स्टोर कीपर जिहड़ा है परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देना कि नवा मटीरियल खरीदो रीऑर्डर लेवल ते आके। दैन मिनिमम लेवल वो है कि रीऑर्डर लेवल तो घटते घटते मिनिमम लेवल तक पहुंचने तक जिन्ना मटीरियल पिया हो, ठीक है, उदों तक नवा परचेज ऑर्डर मिल जाए। मिनिमम लेवल तो थले नहीं जाना चाहिए स्टॉक, और मिनिमम लेवल तो बाद जो परचेज ऑर्डर तो समान आता है वो मैक्सिमम लेवल तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी परचेज क्वांटिटी मिनिमम तो मैक्सिमम के बीच किसी लेवल तक होएगी, रीऑर्डर लेवल तो ज़्यादा होएगी, ऑब्वियस है। डेंजर लेवल कई बार की होंगे कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल करके असीं मिनिमम लेवल तो नीचे चले जाना, तो उस तो अगे एक डेंजर लेवल है। इस लेवल का मतलब है कि तुहाडी प्रोडक्शन रुक सकती है, तो तुहानू बिल्कुल एमरजेंसी परचेज की लोड़ पैगी, तुसीं जिथों मर्जी अरेंज करो, अगर प्रोडक्शन रुकना चाहते हो तो मटीरियल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक लेवल जस्ट एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, भी एवरेजली असीं इन्ना स्टॉक जिहड़ा है गोडाउन दे विच स्टोर दे विच रखते हैं कि कैरी करते हैं। दैन रीऑर्डर लेवल या ऑर्डरिंग लेवल भी कहते हैं। इट इज द पॉइंट एट विच स्टोर कीपर शुड इंटीमेट द परचेज रिक्विजिशन for fresh supplies of material in order to meet the requirement of production up to the time the fresh supply of material is received। हाँ जी, स्टोर कीपर जिहड़ा है वो इन्फॉर्म करता है परचेज डिपार्टमेंट नूं, या परचेज डिपार्टमेंट नूं परचेज रिक्विजिशन भेजता है कि हाँ जी हुण नवा ऑर्डर, नवा समान जिहड़ा है, नवा मटीरियल परचेज करो। ठीक है जी, इस ऑर्डर का फार्मूला की है, रीऑर्डर लेवल वास्ते फार्मूला है साडे कोल, मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम टू गेट फ्रैश डिलीवरी। फ्रैश डिलीवरी मिलने वास्ते जिन्ना टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल मैनू अज मैं ऑर्डर करदा तो 10 दिन च समान आता है, और हर दिन का मेरा अगर 100 यूनिट लगता है तो मेरे को 1000 यूनिट जिहड़ा है मिनिमम लेवल तो उपर पिया होना चाहिए, ताकि जदों मैं रीऑर्डर लेवल ते पहुंच के इन्फॉर्म करा कि नवा ऑर्डर करो, उस तो बाद मटीरियल यूज करते करते मैं मिनिमम तो नीचे ना जावां, मेरा स्टॉक जिहड़ा है वो मिनिमम तो नीचे ना जाए। ठीक है जी, इस ये है रीऑर्डर लेवल का। इनू लीड टाइम भी कहते हैं, जो टाइम परचेज का टाइम है उन्होंने लीड टाइम भी कहते हैं। ਇਹਦਾ एक होर फार्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम अगर तो इन्फॉर्मेशन ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग अवेलेबल ना हो तो तुम ये फार्मूला यूज कर सकते हो, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस तरह का। तो मैक्सिमम कितना लगता है तो किन्ने दिन लगते हैं मैक्सिमम वो हिसाब नाल है। दैन एग्जाम्पल है साडे कोल मिनिमम स्टॉक लिमिट 100 यूनिट, 100 यूनिट की साडी मिनिमम स्टॉक लिमिट है, यानी मिनिमम स्टॉक लेवल साडा 100 यूनिट्स है। मैक्सिमम लिमिट 1500 यूनिट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल साडा 1500 यूनिट है। डेली कंजम्पशन ऑफ मटीरियल 50 यूनिट्स, डेली साडा 50 यूनिट लगता है।
टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रैश डिलीवरी 7 डेज, 7 दिन लगते हैं सानू फ्रैश डिलीवरी रिसीव होने। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रीऑर्डरिंग लैवल ऑफ मटीरियल फ्रॉम द अबव डिटेल्स, इस डिटेल तो तुसी रीऑर्डरिंग लैवल कैलकुलेट करना है। रीऑर्डर लैवल का फार्मूला सीगा अपना मिनिमम लैवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, ठीक है, कंजम्पशन अप टू फ्रैश डिलीवरी कन्वर्जन, लीड टाइम दौरान होने वाली कंजम्पशन नाल जोड़ दो। तो 100 साडा मिनिमम लैवल सीगा, ऊपर असीं दस्सिया क्वेश्चन दे विच पहली लाइन च, प्लस सानू हर रोज 50 यूनिट चाहिए ने, 7 दिनों का मटीरियल ये भी चाहिए, 7 दिन की कंजम्पशन चाहिए है। तो 350 ये हो गया, कुल मिला के 450 यूनिट साडा जिहड़ा है रीऑर्डर लैवल हो गया। दैन इस तो बाद इलस्ट्रेशन 1 बुक तुहाडी बुक चो एग्जांपल है जी, कैलकुलेट द reorder level of material A from ordering level of material A from the following particulars। 1 मिनिमम लिमिट 500 यानी मिनिमम लेवल 500 यूनिट है, मैक्सिमम लिमिट 2500 यूनिट, मैक्सिमम लेवल जिहड़ा है 2500 यूनिट का है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरियल इज 100 यूनिट, डेली साडे 100 यूनिट जिहड़े है रिक्वायर्ड ने। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रैश डिलीवरी 10 डेज, टाइम जिहड़ा है सानू 10 दिनों का लगता है फ्रैश डिलीवरी वास्ते। तो 500 यूनिट मिनिमम, मैक्सिमम 2500, डेली 100 चाहिए और टाइम रिक्वायर्ड 10 दिन है। तो मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द लीड टाइम यानी 100 यूनिट डेली के हिसाब नाल 10 दिनों का 1000 यूनिट है तो 500 यूनिट मिनिमम, कुल मिला के 1500 यूनिट साडा ऑर्डरिंग लेवल हो गया। देन कैलकुलेट द रीऑर्डरिंग लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन तो रीऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करो। मैक्सिमम कंजम्पशन 300 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम कंजम्पशन जिहड़ी है साडी वो 300 यूनिट पर डे है। एंड मिनिमम कंजम्पशन 200 यूनिट्स पर डे, मिनिमम साडी ये मैक्सिमम ते मिनिमम कंजम्पशन दी हुई है। रीऑर्डर पीरियड 8 to 10 डेज, 8 ਤੋਂ 10 दिन का रीऑर्डर पीरियड है। तो साडा दूजा फार्मूला सी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन 300, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 10 दिन, तो मल्टीप्लाई करके 3000 यूनिट साडा रीऑर्डरिंग लेवल आ गया। ऑर्डरिंग लेवल कह लो, रीऑर्डरिंग लेवल कह लो। हाँ जी, दैन अगले जो लैवल्स है उन्होंने गल करांगे। मिनिमम और सेफ्टी स्टॉक लैवल, मिनिमम लैवल वो लैवल है जिहड़ा घट्टो घट साडे स्टॉक दे विच हर वक्त पिया होना चाहिए, ठीक है। दिस लैवल इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मटीरियल विच मस्ट बी मेंटेन्ड इन हैंड एट ऑल द टाइम सो दैट द प्रोडक्शन में नॉट बी हेल्ड अप ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटीरियल, ताकि प्रोडक्शन किसी भी कारण रुक ना सके। घट्टो घट इन्ना मटीरियल जिहड़ा है साडे कोल हर वक्त पिया होना चाहिए। मिनिमम और सेफ्टी स्टॉक लेवल भी कहते हैं। सेफ्टी स्टॉक लेवल का फार्मूला की है मिनिमम और सेफ्टी स्टॉक लेवल का, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन ते नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड या तो तुहाडे क्वेश्चन च दिता होएगा, अदरवाइज तुसी अगर मिनिमम मैक्सिमम दिता है उन्हां दी एवरेज नू नॉर्मल कह सकते हो। जिवें 200 तो 300 यूनिट तक 250 हो गई नॉर्मल कंजम्पशन, ठीक है। इसी तरह 5 तो 10 दिन क्या तो 7.5 दिन हो गए नॉर्मल कंजम्पशन दे डेज, ठीक है। देन नोट minimum or safety level is not required in case of special material which is required against customer specific order। अगर किसी कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर पे तुसी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हो, then you not required to maintain minimum level, क्योंकि तुसी उस ऑर्डर के हिसाब नाल ही मटीरियल मंगाया तो उस ऑर्डर को कंप्लाई करता, तुहानू मटीरियल उन्ना की चाहिए जिन्ना उस ऑर्डर पे लगेगा। Then maximum stock level, this is the maximum quantity of material which can be held in stock at any time। Stock in store should not exceed this quantity so that there may be no overstocking। Overstocking तो बचन वास्ते एक maximum level fix किया गया ताकि स्टॉक जिहड़ा है उस लेवल तो वध ना होवे। बेसिकली है कि अगर ज्यादा स्टॉक रखांगे तो हो सकदा साडे स्टोर की कैपेसिटी घट जाए तो सानू नवा स्टोर लेना पै जाए, जगह होर लैनी पै जाए, बंदा होर रखना पै जाए, वो साडी कॉस्ट वधाएगा। तो वो कॉस्ट मिनिमम रखने वास्ते असीं एक मैक्सिमम लैवल रख लिया भी कॉस्ट साडी कंट्रोल च रहे ते मटीरियल ते भी कंट्रोल रहे, ठीक है, नाल ओवर स्टॉकिंग ना होवे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू फार्मूला की है दा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। हुण आ रीऑर्डर लेवल ते रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इन्हां दोनों का फर्क तुहानू क्लीयर पता होना चाहिए। रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जिस ते आके असीं नवा ऑर्डर प्लेस कर दिंदे हां भी हां जी सानू नवे मटीरियल की लोड़ है, साडे स्टॉक दे विच मटीरियल घट रहा है, रीऑर्डर लेवल तो थल्ले चले जाएगा। मिनिमम लेवल तो थल्ले जाने तो पहले पहले साडे कोल नवी परचेज आ जाए, साडे कोल मटीरियल आ जाए। दैन रीऑर्डरिंग क्वांटिटी जिहड़ी है, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी जिहड़ी है
ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਆਰਡਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਆਰਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਰੀਆਰਡਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਰਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈਏ ਜਾਂ ਫਰਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਆਰਡਰਿੰਗ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਆਰਡਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਆਰਡਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ then minus minimum consumption to minimum reorder period ਇਹਦੇ ਚੋਂ minimum consumption ਤੇ minimum reorder period ਦੀ multiplication ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ then danger level ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ emergency purchase ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ minimum stock ਤੋਂ ਘਟਦੇ danger level ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ emergency purchase ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ otherwise production will be stopped this means a level at which normal issues of the material are stopped and further issues are made only under specific instructions ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡੇਂਜਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੀਆਰਡਰ ਪੀਰੀਅਡ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ठीक है जी then average stock का सिंपली है कि दोनों दी एवरेज मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल दी एवरेज कर लो या मिनिमम प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी क्योंकि मिनिमम दे विच रीऑर्डर क्वांटिटी जोड़ के टोटल स्टॉक हो जाएगा वो मैक्सिमम ते पहुंच जाता है बेसिकली ठीक है तो मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी साडा एवरेज स्टॉक होना चाहिए ठीक है इन्हां फार्मूलास नूं ध्यान रखते हुए अगली एग्जांपल्स करांगे आपां इलस्ट्रेशन 3 is the minimum stock level and average stock level of raw material A and A are 20,000 and 40,000. Minimum stock level 20,000 है and maximum stock level 40,000 है. Units respectively. Find out the reorder quantity. Reorder quantity कटन नु क्या तुहानू minimum stock level ते average stock level दिता है सानू. Average stock level ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ minimum stock level plus half of the reorder quantity. ठीक है क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम नहीं ना जो मिनिमम मैक्सिमम दिता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੀਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੀਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਰੀਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਨੂੰ एवरेज स्टॉक लेवल पता है मिनिमम लेवल पता है एवरेज स्टॉक लेवल साडा है 40,000 यूनिट और मिनिमम हैगा 20,000 यूनिट एक मिनट की लिखा है एवरेज स्टॉक 20,000 मिनिमम जेड़ा है 40,000 सॉरी एवरेज जेड़ा है 20,000 ते मिनिमम 40,000 फार्मूले दे विच ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ठीक है एवरेज स्टॉक लेवल माइनस मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया 40,000 माइनस 20,000 ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਰੀਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 40,000 ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਰੀਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਚੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ solution करने then illustration 4 in a company weekly minimum and maximum consumption of material A are 25 and 75 minimum 25 है maximum 75 है the reorder quantity as fixed by a company is 300 unit reorder quantity 300 unit है the material is received between 4 to 6 days time जेड़ा है 4 ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ 4 to 6 weeks from issue of supply order कैलकुलेट मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल पहले तो मिनिमम लेवल का फार्मूला की है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड ठीक है जी रीऑर्डर क्वांटिटी हम दी हुई है रीऑर्डर लेवल है नहीं था पहले रीऑर्डर लेवल का फार्मूला लगाना पड़ेगा रीऑर्डर लेवल का हमारे को फार्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड मैक्सिमम कंजम्पशन सानू कंजम्पशन दी है 25 तो 75 तो मैक्सिमम 75 होगी जी टाइम दिता 4 तो 6 हफ्ते का 6 हफ्ते मैक्सिमम टाइम हो गया
तो 450 यूनिट मेरा करसर देखो उत्थे करसर चल रहा है 450 यूनिट तुहाडी जिहड़ी है रीऑर्डर लैवल आ गया। उस तो बाद तुहाडा मिनिमम लैवल का फार्मूला रीऑर्डर लैवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन कितना कटांगे 25 ते 75 की एवरेज 50। इसे तरह पीरियड 4 तो 6 की एवरेज करांगे 5 वीक आ जाएगा। तो 450 माइनस 50 गुना 5 हफ्ते जिहड़ा है टोटल फाइनल करके 200 यूनिट साडी जिहड़ी है मिनिमम लैवल आ गया। दैन मैक्सिमम लैवल का फार्मूला है रीऑर्डर लैवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लैवल आप कट चुके हैं जी इत्थे 450 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी सानू क्वेश्चन च दित्ती हुई है 300 यूनिट, ठीक है जी। माइनस मिनिमम कंजम्पशन सानू पता है 25 और मिनिमम पीरियड सानू पता है 4, ठीक है जी। 25 गुना 4 100 आ गया 450 जमा 300 750 माइनस 100 650 साडा जिहड़ा है मैक्सिमम लैवल आ गया। देन अगली इलस्ट्रेशन 3 तो बाद इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिनिमम यूसेज पर वीक ईच इज 50 यूनिट्स, मैक्सिमम यूसेज 150। यानी मिनिमम तो मैक्सिमम की रेंज कितनी है 50 तो 150 का। नॉर्मल कंजम्पशन 100 आ जाएगी अगर आप एवरेज कंजम्पशन इतों लैनी हो। सानू नॉर्मल दित्ती भी हुई है जी, नॉर्मल यूसेज पर वीक ईच 100 यूनिट्स है जी, ठीक है जी। दैन ऑर्डरिंग क्वांटिटी मटीरियल एक्स का है 600 यूनिट एंड मटीरियल वाई का 1000 यूनिट है। तो डिलीवरी पीरियड मटीरियल एक्स वास्ते 4 तो 6 हफ्ते है और मटीरियल वाई वास्ते 2 तो 4 हफ्ते जिहड़ा साडा है रीऑर्डर पीरियड है भी जिस टाइम च समान आता है। तो असी सब तो पहले तो रीऑर्डरिंग लैवल ले लीए जी दोनों का। मैक्सिमम कंजम्पशन तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 150 गुना 6 ते 150 गुना 4 ये साडी मैक्स रीऑर्डर लैवल आ गया। दैन मिनिमम लैवल, रीऑर्डर लैवल इसलिए कटिया कि मिनिमम लैवल के फार्मूले च रीऑर्डर लैवल चाहिए। मिनिमम लैवल रीऑर्डर लैवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन असी 50 ते 150 की एवरेज कर ली, वैसे भी नॉर्मल दी हुई है 100, ठीक है। तो पीरियड जिहड़ा है नॉर्मल पीरियड 4 तो 6 हफ्ते का 5 आ गया जी, 2 तो 4 हफ्ते का 3 आ गया। ये दोनों पीरियड्स आ गए। हुण पहले मिनिमम लैवल एक्स का कटांगे जी। एक्स का साडे कोल ऑर्डरिंग लैवल 900 है, माइनस 100 गुना 5 हफ्ते 400 यूनिट आ गया। इस तरह वाई का जिहड़ा है साडे कोल 600 कटिया असी मैं नाल नाल करसर उत्थे ले जाना बेटा जिहड़ी क्वांटिटी आपां देख रहे हैं 600 माइनस 100 गुना 3 किया तो 300 यूनिट साडे कोल वाई की कंजम्पशन आ गई, ठीक है। दैन मैक्सिमम लैवल रीऑर्डरिंग लैवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लैवल जिहड़ा साडा है और रीऑर्डरिंग लैवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी चों मिनिमम कंजम्पशन ते मिनिमम रीऑर्डर पीरियड माइनस करें। रीऑर्डरिंग लैवल एक्स का आपां कड्ढिया सी 900, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी सानू एक्स दी दित्ती हुई है 600, ठीक है। 900 जमा 600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन 50 ते मिनिमम पीरियड है एक्स का 4, ठीक है जी। इत्थों फाइनल करके 1300 यूनिट आ गया। इस तरह वाई का मिनिमम पीरियड 4 है, वाई का रीऑर्डरिंग क्वांटिटी 1000 है, तो कंजम्पशन मैक्सिमम मिनिमम जी है 50 ही है। 600 जमा 1000 माइनस 50 गुना 2 करके फाइनल 1500 यूनिट साडी जी है ये क्वांटिटी आ गई। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 6 जी जेड डबल ई इज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ 3 रॉ मटीरियल्स। जी प्रोडक्ट जिहड़ा है वो 3 रॉ मटीरियल से थ्रू बनया होया है, ठीक है। 3 रॉ मटीरियल्स एम एन एंड क्यू। ईच यूनिट ऑफ जी रिक्वायर्स 10 kgs 8 kgs एंड 6 kgs। जी का एक यूनिट बनाने लिए तीनों मटीरियल लगते हैं। 10 किलो एम लगता है, 8 किलो एन लगता है तो 6 किलो जो है क्यू लगता है ऑफ एम एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। द रीऑर्डर levels of m and n are 15,000 and 10,000। रीऑर्डर लेवल m ਤੇ n ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, q ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ठीक है। m ਦਾ 15,000 kg n ਦਾ 10,000 kg respectively, while the minimum level of q ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 kg। the weekly production of g varies from 300 to 500 units। g ਦੀ ਜਿਹੜੀ weekly production ਹੈ ਉਹ 300 ਤੋਂ 500 यूनिट है, यानी फाइनल यूनिट ਇੰਨੇ बनने हैं और इन्ने यूनिट के हिसाब नाल ही साडा मटीरियल जिहड़ा है वो चलना है, मटीरियल मूव करना है 300 तो 500 यूनिट का। वाइल द वीकली एवरेज प्रोडक्शन इज 400 यूनिट्स, जबकि वीकली एवरेज प्रोडक्शन कितनी है 400 यूनिट, ठीक है जी। 300 ते 500 की एवरेज
you are required to compute the minimum stock level of M, maximum stock level of N and the ordering level of Q. ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ। Following information, following additional data is given. Reordering quantity ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ M, N, Q ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, minimum, average ਤੇ maximum period ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ minimum stock level of M. M ਦੇ minimum stock level ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ reorder level minus average consumption into average delivery period। ठीक है जी, एवरेज कंजम्पशन ते एवरेज डिलीवरी पीरियड। ਅਸੀਂ एवरेज ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 400 यूनिट बनते हैं M ਦੇ, और M ਦੇ एक यूनिट वास्ते 10 किलो M ਦਾ मटीरियल लगता है, तो 400 गुणा 10 मटीरियल तो लगना ही लगना है। ਤੇ एवरेज कंजम्पशन पीरियड ਕਿੰਨਾ M ਦਾ 3। ठीक है जी, तो ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੀਆਰਡਰ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। M ਦਾ ਰੀਆਰਡਰ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 15000 kg। ਪਹਿਲੇ 15000 kg ਰੀਆਰਡਰ ਲੈਵਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ 400 यूनिट बनने हैं जी दे, और एक यूनिट वास्ते M मटीरियल 10 किलो लगता है। एक यूनिट वास्ते M मटीरियल देखो 10 किलो लगता है। ऊपर क्वेश्चन मैं कर्सर नाल उत्थे ले जा रहे हैं। ठीक है, 400 गुणा 10 यानी 4000 किलो मटीरियल चाहिए सानू, और एवरेज डिलीवरी पीरियड साडा है 3 हफ्ते। तो 3 नाल मल्टीप्लाई कर लिया, 15000 माइनस 4000 गुणा 3 12000, फाइनली 3000 kg साडा मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया M का। then maximum stock level of N, maximum stock level वास्ते ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period। reorder level, reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period। ठीक है जी, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ reorder level ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ N ਦਾ reorder level ਸਾਨੂੰ 10000 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है जी, 10000 ले लिया। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी सानू दी हुई है N दी 15000 देखो। ठीक है, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी ले ली माइनस मिनिमम कंजम्पशन हम कितना निकलेगी। सानू पता है कि मिनिमम यूनिट बनते हैं 300, और मटीरियल कितना लगता है 8 किलो। 300 गुणा 8, मिनिमम कंजम्पशन 300 गुणा 8 होगी जी पहले। ते हफ्ते कितने हैं मिनिमम 4, N दे हफ्ते 4, और ना मल्टीप्लाई करके साडे कोल एक आ गया 300 गुणा 8 गुणा 4 करके 9600 kg आ गया। तो 10,000 प्लस 15,000 माइनस 9600, फाइनली 15,400 kg ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ गया। इन द then ordering level of Q ਦਾ ordering level ਕਰਨਾ ਜੀ। Q ਦਾ ordering level ਫਾਰਮੂਲਾ maximum reorder period maximum consumption। ਹੁਣ maximum reorder period ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ Q ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 5 ਹਫ਼ਤੇ। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना कटांगे, 500 यूनिट मैक्सिमम बनते हैं, और एक यूनिट से 6 किलो लगता है Q ਦਾ मटीरियल। 500 गुणा 6, 500 गुणा 6 वो करांगे, प्लस जिहड़ा है 5 हफ्ते नाल मल्टीप्लाई करांगे, तो उथों साडे कोल 15000 kg जिहड़ा है वो मटीरियल आ गया, इहदा रीऑर्डर लेवल आ गया Q का। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर listening my lecture। just wait। okay, thank you all।